रहे थे, कुछ आइडिया है, ध्यान में है? हेलो, साइकिल स्टार्ट किया था सर, साइकिल कौन स्टार्ट सा किया था। स्टार्ट किया था? साइकिल नहीं, साइकस साइकिल्स कहाँ है अपने को? साइकेडियोडियोडा हाँ, साइकेडियोडियोडा। साइकेडिवाइडिया नहीं, साइकेडिवाइडिया भी नहीं, आप लोग भूल गए अभी। सिलेबस फिर से एक बार देखो। हमने we have started already completed gingo. I have just introduced you Biora and Trichopites, and beside that I have started to introduce you regarding the conifers. Is it right? Yes, sir. We have just finished Gingo. I have just introduced regarding the Biera and Trichopites, and I have told you that Biera and Trichopites, both the genera are extinct genera and only available in the fossilized form. Besides that, I think I have shown you, uh, I have shown you uh, presentation which is related to, I think this presentation I have shown you. Isn't it? Hello. I have shown you this presentation which shows large number of conifers, and so I am trying to introduce you with conifers only. Conifers को मैं introduce किया था last केस में। अच्छा, साथ साथ हमने दूसरा क्या देखा था, मैं आपको फिर से बताता हूँ। I have already shared you the large number of characteristic features of gymnosperm. जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने किए थे, एंड वी हैव गॉन थ्रू वन मोर, दैट इज कोनिफर्स। कोनिफर्स के बारे में हमने शुरू किया था, लेकिन रिमेंबर कोनिफरस इज द लार्जेस्ट लिविंग ऑर्डर ऑफ द जिम्नोस्पर्म. Simple meaning is cone like appearance, and now in spite of continuing with conifers, now we are going to again back with our interested genera, that is गिंगो. वी हैव फिनिश्ड। आप लोगों के ध्यान में है हमने गिंगो फिनिश किया, वो ध्यान में है? Yes, sir. अगर चाहे Yes, तो मैं sir. आपको अगर चाहे तो मैं आपको गिंगो के बारे में फिर से एक बार आपको बता सकता हूँ। हम लोगों ने गिंगो कैसे कंप्लीट किया है वो भी आप एक बार ध्यान में रखो। जस्ट मिनट। This was the just Gingo. So as far as Gingo considered, we have studied the distribution of a Gingo, nomenclature of Gingo, Gingo living fossil क्यों बोलते हैं, morphological features of Gingo, anatomical features of Gingo, reproductive structures of Gingo, gametophyte, embryogeny and economic importances of Gingo. Is it clear? Yes, sir. Because Gingo is called as a living fossil, it is also called as a maiden hair fern because its leaf look like maiden hair fern adiantum, and that's why Gingo is now available in China, Burma or Ceylon, Sri Lanka, some part of Japan, and it is also medicinally useful. It is supposed to be oldest living seed plant. It is cultivated for its edible fruits in China and Japan. So all these things we have completed. So this is the shape of a gingo. As far as nomenclature of gingo considered, the different persons call it as in a different way. In fact, its earlier name was Salisburia adiantifolia, but later on its name changed to Ginkgo biloba. Now you might be known Ginkgo biloba is occur now in a wild as well as it is cultivated and living. But as far as fossils considered, large number of Ginkgo fossils are available. So according to Seward University of Cambridge, Ginkgo biloba is assemblage of challenges a heritage from world of an age too remote for our human intelligence to grasp. मतलब बहुत पुराना गिंगो है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हमने देखा था कि गिंगो में लॉन्ग शूट और डार्क शूट ये दोनों रहते। नॉर्मली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल एंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑन द डार्क शूट पर नॉर्मली रहते हैं।
गिंगो के एनाटॉमी के बारे में हमने स्टेम का पोर्शन, लीफ का पोर्शन, उसके डिटेल्स देखे हैं। हम इस बारे में अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम जस्ट समराइजिंग द गिंगो विद इन शॉर्टेस्ट अवेलेबल पीरियड. So we have studied morphology as well as anatomy of the gingo, and the important point for myself is male and female strobilus in case of a gingo. As far as gingo considered, you can observe presence of such a male reproductive structure or microsporangium which are arranged on strobilus. Strobilus पर large number of microsporangium दिखेंगे. At the apex there is a knob, and on the both lateral side microsporangia are available. If you compare this structure to just anther, it looks like anther, and that's why it is interesting. Then another is megasporangium and its development also. So you just observe, this is a part of long shoot, and on the long shoot such a type of ovules are observed. Sometimes even if they are observed on the dark shoot. Then we have studied also the ovule, how ovule of gingo is. Ovule of gingo consists of outer, middle and inner layer, and at the center female gametophyte is present. Outer and inner layer is fleshy, while middle layer is a stony or hard layer. इसके बारे में मैंने आपको नारियल का एग्जांपल दिया था. As far as ovule of gingo considered, it shows presence of a pollen chamber and it shows presence of pair of archegonia. The structure is very much like some of the pteridophytes as well as some of the bryophytes also. We have gone through developmental stages of gingo also, and developmental stages of male gametophyte are just like developmental stages in case of Pinus. Besides that, I have introduced to you many more different uses of gingo. गिंगो के क्या क्या यूजेस है हमने देखे थे. इट इज यूजफुल, बट much more result to be carried out in this regard, because it is used for different purposes, and these purposes are like antioxidant nature, fighting against the inflammation. It is used for circulation and heart health, reduces symptoms of psychiatric disorders and dementia. इसका मतलब ऐसा है कि बहुत सारे केसेस में गिंगो का डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज होता है. और आखिरी में आपको बताया था कि डोसेज कैसे लिए जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ ड्राइड लीव्स. सो इज इट क्लियर टू यू? हेलो? यस सर. ये चीजें मैंने आपसे पहले ही शेयर की है. इज इट राइट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and today we are going to study with the important genera. मैंने जानबूझ के सेंटर में गिंगो दिखाया है और दोनों अलग अलग साइड को ट्राइकोपिटिस एंड बायरा लिखा है. कई बार लोग पूछते वक्त गिंगो बायरा ऐसे ही बोलते, लेकिन रिमेंबर गिंगो इज अ डिफरेंट जनरा एंड बायरा इज अ डिफरेंट जनरा. क्या आपके ध्यान में आ रहा है? Yes, sir. All these three genera belongs to order Gingoaceae, family Gingoaceae. So remember, gingo is an independent genera, Trichomitis is another independent genera, and Baera is another independent genera. Now remember, central photograph shows what things? Anybody? Hello? Central photograph किस चीज का है? Gingo. गिंगो. लेकिन गिंगो का कौन सा पार्ट? हेलो? Which part of गिंगो it represent or shows? Yes, बताओ. गलती हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इशू. हेलो? Sir, fruit. Sir, fruit. क्या? Fruit. Yes, it is a seed or fruit and leaf. ओके, तो नो नाउ डेलिबरेटली अगर आपने देखा तो इन तीन फोटोग्राफ्स में से बीच वाला फोटोग्राफ जो है दैट इज कलरफुल, एंड ऑन द लेफ्ट एज वेल एज राइट साइड फोटोग्राफ्स व्हिच आर ब्लैक एंड व्हाइट. आ रहा है ध्यान में?
Yes, sir. Okay, because ginkgo is living fossil, it is available in the living condition, while Baera and Trichopites, these both genera are not living genera. आ रहा है ध्यान में? It is only available in the fossil form. बायरा का जो फोटोग्राफ दिखा रहा है, सेंट्रल पोर्शन लीफ लाइक लीफी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एंड लीफ इज लोब्ड एंड हर जगह दो दो ब्रांचेस दिख रहे हैं. इज इट राइट? Yes, sir. Yes, Then sir. ट्राइकोपिटिस, रिगार्डिंग द ट्राइकोपिटिस, हमेशा हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं. ट्राइको, द टर्म ट्राइको रिलेटेड टू ट्राइकोम, जस्ट लाइक ट्राइकोम. ट्राइकोम का मतलब है आउटग्रोथ विच इज प्रेजेंट ऑन द लीफ. एंड पिटिस, पीआईटी, पिट, पिट यानी खड्डा, पण असा याचा कुठलाही मीनिंग नाही आहे. ट्राइकोपिटिस इज अगेन अनदर फॉसिल जनरा फ्रॉम फैमिली गिंगोएसी और ऑर्डर गिंगोएल्स. क्या अभी आपके ध्यान में आ रहा है? क्लियर कर लो पहले से. ऑर्डर गिंगोएल्स या फैमिली गिंगोएसी में तीन जनरा है. एक गिंगो विच इज लिविंग फॉसिल, अनदर एक्सटिंक्ट बायरा एंड अनदर एक्सटिंक्ट जनरा इज ट्राइकोपिटिस. So I think it is now clear to you. Now I am going to show you constructed figure. Constructed जो कंस्ट्रक्शन की गई बाद में वो फिगर मैं दिखा रहा हूं. अब देखो, बायरा ग्रासिलिस लीफ विथ मेल एंड फीमेल शूट. बायरा ग्रासिलिस, आपको बी डायग्राम जो दिख रही, दिस बी डायग्राम इज ऑफ म्यूएन सिटेरियाना. दिस इज अनदर जनरा. इसके बारे में अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है. दिस इज अ डिफरेंट जनरा. और पहली डायग्राम जो है, दिस वन, इट इज बायरा ग्रासिलिस लीफ विथ मेल एंड फीमेल शूट. सो आपको दिख रहा है, दिस वन इज अ सीड एंड दीज आर माइक्रोस्पोरोफिल्स, मेल एंड फीमेल शूट्स ऑफ बायरा. इज इट क्लियर टू यू? हेलो, मैं फिर से आपको बताता Yes, हूँ. sir. बायरा इज एक्सटिंक्ट जनरा. बायरा क्या है? बायरा एक्सटिंक्ट जनरा है. जस्ट मिनट, मैं आपको थोड़ा सा बायरा के बारे में, जस्ट मिनट, मैंने बायरा का स्पेलिंग गलत लिखा है. जस्ट मिनट, PAIERA. जस्ट मिनट. अगर हम बायरा देखते हैं तो व्हाट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. सो यू गो थ्रू. मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि आप इस इंफॉर्मेशन के थ्रू जाओ, लेकिन अगर आपने इंटरनेट पे कितना भी ढूंढा तो आपको आधे पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. सो यू जस्ट गो थ्रू इट. बायरा इज अ जीनस ऑफ प्री हिस्टोरिक जिम्नोस्पर्म. प्री हिस्टोरिक मतलब प्रायर टू हिस्टोरिक पीरियड. प्रीहिस्टोरिक जिम्नोस्पर्म इन द ऑर्डर गिंगोएल्स, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था. इट इज रिलेटेड टू जनरा ऑफ गिंगो एंड गिंगोइटिस. इट इज लोब्ड इनटू 4 segments and has no stock. Fossil of Baera are found worldwide and has been known from Permian to the Cretaceous period. कौन से पीरियड से? परमियन पीरियड से लेकर क्रिटेशियस पीरियड में. यहाँ आप देख सकते हैं, these are the different periods. पर्मियन पीरियड के बारे में क्या लिखा है देखो. Permian is a geological period and system which span 47 million years from the end of Carboniferous period to the beginning of Triassic period. मतलब Triassic के beginning तक. It is the last period of Paleozoic era. आप सभी जानते हैं Paleozoic, Mesozoic और Cenozoic era. ओल्डेस्ट era हम बोलते हैं Paleozoic. मिडल पीरियड जो है दैट इज मेसोजोइक, और अभी जो पीरियड शुरू है दैट इज मतलब इरा शुरू है दैट इज सीनोजोइक. तो आपके ध्यान में आ जाएगा ब्रॉड सेंस में जो तीनों इरा थे, इन तीनों इरा के पहले इरा के आखिरी में ये शुरू हुआ. इज इट क्लियर टू यू? हेलो. Yes, sir. So this information is available on the Wikipedia. क्या आप लोग विकिपीडिया यूज करते हैं हमेशा? हेलो, क्या आप लोग विकिपीडिया यूज करते हैं?
आपको अगर किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप विकिपीडिया पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, नहीं तो हम देखते हैं और कुछ अवेलेबल है क्या। मैं तो प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, लेकिन यहाँ देखो फॉसिल मेंबर्स ऑफ गिंगोएसी विथ डायग्राम। अब फॉसिल मेंबर्स ऑफ गिंगोएसी विथ डायग्राम में क्या दिया है देखो। अगर हम ये डायग्राम देखते हैं, देखो these are the different fossil members of गिंगोएसी या गिंगोएल्स। कौन कौन से फॉसिल मेंबर है देखो। ओनली फॉसिल लीव्स आर अवेलेबल। फर्स्ट वन दैट इज विंडवार्डिया, विंडवार्डिया कोकेलिया। देन सेकंड वन दैट इज आर्क्टोबायरा। थर्ड वन, थर्ड वन इज बायरा, जो हम देखना चाहते थे वो बायरा। यहाँ आप देख सकते हैं दो दो लोग दिखेंगे, हर लोग लीफ के दो दो लीफ। और नेक्स्ट चौथा वाला जो है तो गिंगोइटिस। सो दीज आर द डिफरेंट, जस्ट मिनट, ये जो हम देख रहे हैं these are the different information available regarding, just a minute, एक मिनट। So these are the different types of leaves available in case of Baera or Gingoaceae members. Just a minute. So these are the different types of leaves available in Gingoaceae members. Just a minute. तो आप यहाँ देख सकते हैं what are the different leaves observed in case of a Gingoaceae. Just a minute. कहाँ गया? Just a minute. उसके बाद क्या आप ट्राइकोपिटिस यहाँ देख रहे हैं? हेलो, Yes. आप यहाँ ट्राइकोपिटिस देख रहे हैं। ट्राइकोपिटिस के बारे में भी अगर आपने नेट पर सर्च किया तो आपके ध्यान में आएगा। देखो ट्राइकोपिटिस के भी बहुत सारे इमेजेस अवेलेबल है। एंड एज फार एज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्राइकोपिटिस कंसिडर्ड, कुछ भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आप देख सकते हैं Trichopitis is an extinct genus of gymnosperm in Trichopitaceae family. It comprises of only one recorded species, that is Trichopitus heteromorpha. यहाँ आपको Trichopitis का conservation status और क्लासिफिकेशन दिखेगा। किंगडम प्लांटी, गिंगोफाइटा, गिंगोप्सिडा, गिंगोएल्स, ट्राइकोपिटेसी, genera Trichopitis and species Trichopitis heteromorpha. So here also no much more information is available regarding the Trichopitis. Just a minute. हम शायद तो मैं आपको दिखा रहा था, पहले आपको दिखाया था मैंने, दैट इज रिगार्डिंग दिस बायरा लीफ। अब उसके बाद हम बाकी इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स अवेलेबल ऑन द नेट हम देखते हैं। चलो अभी हम हमारे लिए जो अपनी पीपीटी है वहां आते हैं। यहाँ हमने देखे सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ दीज आर अदर मेंबर्स फ्रॉम गिंगोएसी, लेकिन नाउ वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन बायरा। एज फार एज बायरा कंसीडर्ड लीफ अगर देखा गया तो आपको लीफ दिखेगा जस्ट लाइक पाम। नॉट मच मोर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग दिस जनरा। इस जनरा के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल।
चलो बायरा का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्रिडोमिनेंटली मिडल जुरासिक जीनस रेंजेस इनटू लो क्रिटेशियस। ऋतु आप सुन रहे हैं? ऋतु शर्मा और कौन है? हेलो, क्या आप लोग सुन रहे हैं? यस सर। Yes, sir. आप जब तक रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बंद कमरे में बातें कर रहा हूँ। सो बायरा प्रिडोमिनेंटली मिडल जुरासिक जनरा में है, जुरासिक का जनरा है। मैंने इसके पहले आपको बताया था ट्रायसिक, जुरासिक, दीज आर द पीरियड। सो जुरासिक पीरियड मतलब आपने फिल्म देखी होगी जुरासिक पार्क, उसी पीरियड का है। इट कैनॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम गिंगोइटिस, गिंगोइटिस से डिस्टिंग्विश नहीं होता। जस्ट मिनट, it cannot distinguish from gingivitis by using characteristics of cuticle and stomata। सिर्फ क्यूटिकल और स्टोमाटा के कैरेक्टर के आधार पर, मतलब लीफ के आधार पर इसको डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल नहीं है। It does differ from gingivitis, however, in lacking distinct petiole। गिंगोइटिस के अदर मेंबर्स में डिस्टिंक्ट पिट्यूल नहीं है, लेकिन बायरा में है डिस्टिंक्ट पिट्यूल एंड बीइंग मोर वेज शेप्ड। क्या आप लोगों ने इसके पहले बिग्नोनिया के डायग्राम निकाली है या बिग्नोनिया की स्टेम का सेक्शन स्केच किया था? हेलो हेलो, आपने बिग्नोनिया का सेक्शन स्केच किया था? कोई भी बात नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हेलो, Yes, sir. बिग्नोनिया का सेक्शन आप लोगों ने इसके पहले कभी स्केच किया था क्या? हाँ सर। No, sir. सर No, sir. जस्ट मिनट, मैं आपको बताता। किया होगा आपने एबनॉर्मल या एनॉर्मलस सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आपने बिग्नोनिया का टीएस ऑफ स्टेम किया होगा। मैं आपको याद दिलाता हूँ, टीएस ऑफ स्टेम बिग्नोनिया। क्या आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं? हेलो, स्ट्रक्चर दिख रहा है? किया था। हाँ, इसको हम बोलते हैं वेजेस। आ रहा है ध्यान में? यस सर। वेजेस का मतलब है चार जगह पे सेकेंडरी फ्लोएम ज्यादा है। फॉर एग्जांपल एट दिस प्लेस, एट दिस प्लेस, एट दिस प्लेस एंड एट दिस प्लेस। और अगर ये चार देखे तो यहाँ क्या है, सेकेंडरी जाइलम ज्यादा है। सो सच अ थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी जाइलम, दैट इज वेजेस एंड फरोल्स। सो आप फिर से अपने डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं। It does differ from gingoids, however, in lacking a distinct petiole and being more wedge-shaped, judging from synonyms that has been established for species of Baera and gingoitis. It is difficult in some specimens to determine their generic affinities. अलग-अलग जो स्पेसिमेंस है उसमें जेनरिक एफिनिटीज क्या है? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, क्या हम होमोसेपियंस हैं? हेलो, क्या हम होमोसेपियंस हैं? Yes, sir. Yes, sir. अगर होमोसेपियंस है तो भी आप बोलते हैं XYZ पर्सन साउथ इंडिया का है, XYZ पर्सन नॉर्थ इंडिया का है, ABC पर्सन नॉर्थ ईस्ट का है, नहीं तो कोई पर्सन वेस्टर्न कंट्रीज का है। क्यों? फीचर्स आर डिफरेंट। इज इट राइट? आप सिर्फ ड्रेस देख के, आदमी को देख के आप बता सकते हैं ये नॉर्थ इंडिया का है, साउथ इंडिया का है, वेस्टर्न पार्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है, बिकॉज यू आर बेटर नोन विथ फिजियोग्राफिक एंड फिजिकल कंडीशंस। वैसे ही बायरा स्पेक्टाबिलिस व्हिच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैलिड स्पीसीज ऑफ बायरा, बायरा के अलग अलग स्पीसीज में से बायरा स्पेक्टाबिलिस इज स्पीसीज जो वैलिड है, अवेलेबल है सिंस द टर्न ऑफ द सेंचुरी। illustrate wedge-shaped leaf and indistinct petiole characteristic features of genus। मतलब इतने पूरे इससे आपको इतना पता चला कि there is one species of Baera, that is Baera spectabilis, and this Baera spectabilis shows presence of wedge-shaped leaf and indistinct petiole characteristic features।
आ रहा है, ध्यान में आ रहा है? हेलो, यस सर। जस्ट मिनट, हम स्पेसीज डाल के देखते हैं क्या बायरा की स्पेसीज अवेलेबल है। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर फोटोग्राफ देखना है तो आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। बायरा के बहुत सारे फोटोग्राफ अवेलेबल है, लेकिन बायरा स्पेक्टेबिलिस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। चलो ठीक है, हमें बायरा के बारे में विकी पर इतना ही था, बाकी तो बायरा, सो दीज आर द डिफरेंट स्पेसीज ऑफ बायरा। हमें उसके बारे में अभी एट दिस पेज देखने की जरूरत नहीं है, हम फिर से अपने बायरा के डिस्क्रिप्शन के तरफ जाते हैं। रिमेंबर, ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसका मतलब है ये प्लांट अवेलेबल नहीं है इन द लिविंग फॉर्म। The common species of genus Baera include Baera spectabilis, Baera leptophylla, Baera boigidiana and Baera munsteriana। अब इसके फिगर 4.24 पर है बोले, लेकिन हमने सिर्फ बायरा जनरा पढ़ना है तो हमने फिगर नहीं दिखाया। An unidentified species has also been reported from Gondwana of India। क्या आप जानते हैं गोंडवाना लैंड मतलब क्या है? हेलो हेलो, क्या आप जानते हैं गोंडवाना लैंड किसको बोलते हैं? आप बात क्यों नहीं कर रहे? हेलो, यस सर। गोंडवाना लैंड आप जानते हैं Yes, क्या? sir. यस सर। हाँ, कौन सा है गोंडवाना लैंड? हेलो, चलो, आई थिंक यू माइट बी वेल नोन, देयर वाज there is a different continents now at present। आप जैसे बोलते हैं यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, लेकिन during the ancient time there was a single land mass and this mass was called as a Pangea। Due to earthquake and various activities inside the earth crust, these are formed into different land masses, and these land masses are known as continents। Is it clear to you? Hello, Yes, sir. these land masses are called as continents। अभी आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो देखो, गोंडवाना की डेफिनेशन देखो। गोंडवाना or Gondwana land is the name of the southern half of the Pangean supercontinent that exists some 300 million years ago। मतलब पैंजिया का साउथ पोर्शन जो था उसको बोलते हैं गोंडवाना। आप यहाँ देख सकते हैं पैंजिया का पोर्शन जो है, ऊपर वाला पोर्शन उसको बोलते हैं लॉरेसिया, और नीचे वाला पोर्शन जो है उसको बोलते हैं गोंडवाना। गोंडवाना में आप यहाँ देख सकते हैं साउथ अमेरिका का पार्ट, साउथ अफ्रीका का पार्ट, एंड दिस वन इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दिख रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. earlier it was Pangea which is differentiated into Gondwana land। so Gondwana land का मतलब ही है southern hemisphere, या गोंडवाना लैंड का मतलब है, मैंने आपको जैसे बताया अभी अभी कि गोंडवाना का मतलब है इट शुड बी ए साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड पोर्शन ऑफ इंडिया। सो इज इट क्लियर टू यू नाउ? हेलो, यस सर। चलो हम सामने पढ़ते हैं। An unidentified species has also reported from Gondwana of India। Leaves of Baera were like those of Ginkgo and Ginkgoitis, but had very short petiole or were sessile। sessile का मतलब है, हेलो कोई बता सकता है sessile? What is sessile? हेलो, विदाउट पिट्योर। येस, विदाउट पिटिओल, किंवा मराठीत सांगायचं झालं तर पानाला देठ असतो, धोप्याच्या पानाला देठ असतो, तर तो ससाईल नाही आहे। आणि काही लीफ असे असतात की दीज आर डायरेक्टली अटॅच्ड टू स्टेम, देन यू कॉल इट एज अ ससाईल किंवा सब ससाईल। फॉर एक्झाम्पल अस्कलपेडियसी मध्ये तुम्ही म्हणता सब ससाईल, व्हेरी शॉर्ट
लीफ बेस इज प्रेजेंट। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको और एक ससाइल का फोटोग्राफ भी दिखा सकता हूँ। जस्ट मिनट, हम फिर से देखते हैं। द कंसेप्ट शुड बी क्लियर। ससाइल लीफ, आप यहां देख सकते हैं, हाँ, ससाइल लीफ बेस, सब ससाइल लीफ बेस, और ये है पिटियोलेट। पिटियोल मतलब स्टॉक। ये सब ससाइल, क्योंकि यहाँ छोटा सा है और यहाँ बिल्कुल है ही नहीं। आ रहा है ध्यान में? हेलो सर। Yes, sir. पिटियोलेट मतलब उसको पिटियोल है, और ससाइल का मतलब है पिटियोल नहीं है। लीफ इज डायरेक्टली अटैच्ड टू स्टेम। चलो, these were my the Jurassic Baera munstriana has catkin-like structure associated with it. मैंने catkin-like structure last time गिंगो में भी बताया था। These were microsporangiate strobili that had distinct axes with loosely arranged sporangiophore, जैसा हमने गिंगो में देखा वैसे। That born 10 to 12 terminal sporangia, they were pendant. Pendant म्हणजे लोंबणारे, distinct hump like that of modern ginkgo was also recognizable. Almost feasible leaves of Baera bogidiana has 3 to 4 centimeter of long lamina with 2 obtuse apical lobe and dichotomous venation. Stomata were present in a sunken pits. मैं आपको अभी फिर से बताता हूँ regarding the Baera. It is a fossil and available only in the fossilized form. That's why no entire plant is available and hence it is not described. अगर हमने कैरेक्टर देखे तो संकन, स्टोमाटा, ससाइल लीफ, so these are the distinguishing characteristic features of Baera. अब बायरा के बाद में हम जा रहे हैं नेक्स्ट जनरा ट्राइकोपिटस। आप यहाँ देख सकते हैं जो बहुत सारा पोर्शन दिख रहा है, इट इज ट्राइकोम लाइक और आउटग्रोथ लाइक, एंड सो दिस जनरा इज नोन एज ट्राइकोपिटिस। अब यहाँ नीचे लेबल किया है ट्राइकोपिटेसी। ट्राइकोपिटिस हेटेरोमॉर्फिया, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, मॉर्फिया दैट इज मॉर्फोलॉजिकल नेचर। So you are going to observe here Trichopitis heteromorphia, which looks like just outgrowth, or these are micro or megasporangia. क्या अभी आप फिर से ध्यान में आ रहा है आपके? हेलो हेलो, Yes, पहले sir. हमने गिंगो पढ़ा था, अभी हमने बायरा के बारे में देखा, लेकिन एज बायरा इज अवेलेबल इन द फॉसिलाइज्ड फॉर्म, नो मच मोर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द बायरा। अब साथ साथ दूसरा जो है ट्राइकोपिटिस के बारे में, यहाँ जो दिखा हुआ फोटोग्राफ है, दिस इज जस्ट ए इंप्रेशन ऑफ ट्राइकोपिटस लीफ। ट्राइकोपिटस के लीफ का इंप्रेशन अवेलेबल है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। मैंने आपको पहले ही बताया था ट्राइकोपिटिस के इमेजेस पहले दिखाए थे। सो नाउ यू आर नोन विथ, सपोज टू बी नोन विथ ट्राइकोपिटस, बट रिमेंबर दीज आर द ओनली रिकंस्ट्रक्टेड इमेजेस। रिकंस्ट्रक्टेड है, लिविंग कंडीशन में ट्राइकोपिटिस इज नॉट अवेलेबल। आ रहा है ध्यान में? हेलो, Yes, sir. ट्राइकोपिटस लिविंग कंडीशन में अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ डिस्क्रिप्शन देखो, ट्राइकोपिटिस इज एन एक्सटिंक्ट जीनस ऑफ जिम्नोस्पर्म in the Trichopitaceae family. It comprises of only one recorded species, that is Trichopitus heteromorpha. चलो, हम ट्राइकोपिटस के बारे में देख रहे थे और हम अपने ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते। Trichopitus family is represented by single genus Trichopitis. Trichopitus heteromorpha was described in year 1875 from the lower Permian of South France by Saporta. Florin in 1949 studied the species again and confirmed its inclusion in Ginkgoales, and also regarded it is the oldest member of the group.
मतलब आपके ध्यान में आ जाएगा ओल्डेस्ट मेंबर है ट्राइकोपिटस ड्यू टू इट्स डिफरेंसेस फ्रॉम अदर फॉसिल मेंबर्स. Gingoaceae, it was put under separate family. Florin reconstructed the plant from fragment about 8 millimeter. आप इमेजिन कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर के 8 हिस्से, मतलब 10 किए तो उसमें से 8 हिस्से, मतलब करीबन 3/4 सेंटीमीटर इतना ही उसका फ्रैगमेंट मिला in diameter and one spirally arranged leaves and fertile ovulate shoots. Leaves were narrow, terete, entire, again dichotomously branched. They appear circular in transaction and branched in several planes. Fertile oviparous traces or branch were found in the axil of a leaf. मैंने पहली डायग्राम जो ट्राइकोपिटस की दिखाई थी उसमें फ्लोरिन described them as sporangiophoric complexes. मैं फिर से बताता हूँ. Sporangio means sporangium bearing. Phore means extension or stalk. So sporangiophoric complexes and were found in long shoot. Each such a structure consists of axis in branched repeatedly in dichotomous manner. इसको ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, 2-4 पॉइंट इसमें से एक्सट्रैक्ट करके रखो, उतना ही डिस्क्रिप्शन आपको देना है, because next description is related to order Gingoes and Gingo and not related to Trichopites. Is it clear? फिर से देखो, there is no evidence of differentiation of Trichopites axis into short branches, an obvious feature of Ginkgo biloba. Florin in 1949 speculates that as short shoots evolved, the ovulate branch present on the long branches of Trichopites were transferred to short shoot when they evolved, and that our number of ovules on branch were reduced to 1. मतलब लॉन्ग शूट्स के से शॉर्ट शूट की तरफ उसको ट्रांजिट हो गया और उसके बाद नंबर ऑफ ओव्यूल्स उसके ऊपर देखे गए. सो दिस मच डिस्क्रिप्शन इज अवेलेबल रिगार्डिंग दिस जनरा. उसके साथ साथ मैं फिर से आपको अगर अवेलेबल है तो कुछ जस्ट मिनट. आप यहाँ तक देख सकते हैं, इट इज जस्ट ए क्लिप आर्ट ऑफ बायरा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है. सो नो मच मोर डिस्क्रिप्शन. आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे पार्ट्स जो है, दैट इज गिंगो का लीफ है, एलियन स्टैम्प फॉसिल है. सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू क्लिप आर्ट्स. सो हमें इसको भी देखना नहीं है. फॉसिल शार्प, फॉसिल बर्मी, जस्ट मिनट. बायरा. अब ट्राइकोपिटिस के बारे में देखते क्या अवेलेबल है. ट्राइकोपिटस. ट्राइकोपिटस के बारे में भी कुछ अवेलेबल नहीं है. जस्ट मिनट.
मेरी आवाज आ रही? Yes, sir. हाँ. With this, we have completed Gingo and Bayera. I am going to share this presentation today. And next lecture से हम पढ़ने जा रहे हैं कोनिफेरस। शायद आप सभी लोगों को पता है कि मेरा सिलेबस ज्यादा बचा नहीं है। मेरा सिलेबस जो भी है मेरे पास अभी डिस्क्राइब करना आप लोगों से बहुत कम है। अभी सिर्फ मेरा बचा है कोनिफेरस की एम्ब्रियोजेनी, फाइलोजेनी, इवोल्यूशन ऑफ स्केल एंड फाइलोजेनी। So this much part of my syllabus is remaining. बाकी आपको कुछ प्रॉब्लम है? हेलो, बाकी कुछ प्रॉब्लम है? No, sir. चलो No, sir. मीटिंग लेफ्ट करो, धीरे धीरे लेफ्ट हो जाइए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज डाल सकते हैं, नहीं तो मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आंचल कटरे, आंचल, क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? नो जीसू सर, वो ज्वाइन ही नहीं हो रही है वो गूगल क्लासरूम पे। क्यों? सर वहाँ पासवर्ड मांग रहा, ईमेल आईडी थी लेकिन अरे पासवर्ड ही। आपको 2-3 बार खामोरकर सर ने आपके जीमेल पर लिंक भेजी थी, उसमें आपको पासवर्ड खुद रिसेट करना था। क्या आपने किया? सर मैंने ट्राई की वहाँ पे। हाँ? हाँ की, लेकिन हो नहीं रहा। ऐसा क्यों हो रहा है आपका? पता नहीं सर। क्या आपने जो जीमेल सेंड किया है वो आपको पता है? मैंने वो खोल के देखा, आपने आई हुई लिंक, हाँ सर। फिर भी नहीं हो रहा है? नहीं सर। ठीक है, मैं आज खामोरकर सर से अगर मिले तो पूछूंगा, लेकिन लॉकडाउन है तो मिलने के चांसेस कम है। आंचल? हाँ सर। हाँ, और कोई बोल रहा है? प्रतीक्षा? हाँ यस सर। सर मैं कॉलेज गई प्रतीक्षा, थी क्या सर, बीटी प्रॉब्लम है आपका? सर कॉलेज गई थी सर मैं, बीटी कार्ड के लिए, लाइब्रेरी कार्ड के लिए। हाँ, तो लिस्ट नहीं आई बोले सर, वो वाले लिस्ट सर तो कब की गई है? नहीं आई बोले सर वो। उनको बोल देना ऑफिस में ढूंढो लिस्ट करके। मैंने 5 कॉपी ऑफिस में लिस्ट के सेंड किए हैं। और कॉलेज लाइब्रेरी में कौन है? सर सर थे एक, कौन से कौन पता, से? नाम नहीं पता सर उनका। तो वो सर बॉटनी के ही है, लाइब्रेरी के थोड़ी है। उनको मालूम नहीं है कि आपका क्लास नहीं लेते हो? कर नहीं 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 सर, नहीं सर। ओके, ठीक है, ठीक है। लिस्ट अगर लाइब्रेरी आप जाते हैं तो उनको बोल देना कि लिस्ट ऑफिस में सबमिट की है, वहां से कलेक्ट कर लो। बाकी आपका सी सूट का प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं, नो सर, नो सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हर्षदा, आपका क्या प्रॉब्लम है? सर मेरा भी जीसू का ही प्रॉब्लम है सर। अरे कितनी बार आपको लिंक भेजेंगे सर? सर मैंने किया रिसेट, मैंने पासवर्ड किया पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा सर। मैं गूगल क्लास पे ज्वाइन ही नहीं हो रही सर। तो आप ज्वाइन कैसे हो रहे हैं फिर? सर वो लिंक भेज रहे हैं ग्रुप पे, उसमें से ही। अच्छा, लिंक जो ग्रुप पर भेज रहे हैं उसके ऊपर से आप ज्वाइन हो रहे यस सर। हैं। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं है। मैं देखता आज क्या कर सकते, देखता। हर्षदा, आप कहाँ से है? सर सानगढ़ी। सानगढ़ी यानी भंडारा या गोंदिया? भंडारा सर, भंडारा। प्रतीक्षा? सर नागपुर। नागपुर से है। और आंचल? सर फ्रॉम नागपुर। आप नागपुर से है, ठीक है ठीक है। चलो लीव करो, तीनों भी लीव कर दो, मीटिंग